Hello students. Now today in this video we are going to start the next content that we have completed in the last one, that is up to what the average velocity as well as the uniform acceleration and non-uniform acceleration. Children, in this video what we are going to be started, that we will see some of the numericals based upon the acceleration, and the next one, that is the graphical representation of the motion. Let's get started now. So we will start with the numerical itself. Let us take one example. The example is very simple, बच्चों. क्या है? Let us suppose there is one boy named as Ritesh who wants to ride a bicycle, right? He pedals a bicycle and attains a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. In 30 seconds, right? And after that, he applies the brake, and then its velocity decreases. To 4 meter per second in 5 seconds. Right, bachcho? What we wanted to calculate? We wanted to calculate is that. Come on. That is the acceleration. Find acceleration. बच्चों भी acceleration निकालना कैसे हमें? हम सबको पता है कि what exactly is the situation, right? Now he pedals a bicycle, first of all, starting from the rest. Imagine that. Starting from the rest means what? The initial velocity is what? 0. Then he attains a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. And again he applies the brakes at that point, and again he attains a velocity. That velocity decreases to 4 meter per second in what, bachcho? 5 seconds. This is the question. He starts from the rest. One more thing I just wanted to tell you, that when object starts from the rest, always consider the initial velocity is 0, and when the object comes to rest, then the final velocity is what? 0. So these things has to be done. Okay बच्चों, मैं यहाँ पर लिख दूंगा बाद में, बस आपको समझना है. क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? Object comes to rest. Whenever the problem is saying like that, तब बच्चों v क्या लेना है आपको? 0 लेना है. और जब when object starts from rest अगर कहता है तो u must be 0. Please do remember this. Okay, so let's do this equation. First of all, write it down what exactly is the given. Let us do this numerical. हमें पहले दिया कि दो केसेस है बच्चों. एक पहली केस जब उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड बनती है 30 सेकंड में, और दूसरा फेज है जब को ब्रेक अप्लाई करता है तो 4 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड. कैसे करना है इसको, राइट? सो इन द फर्स्ट केस क्या लिखूंगा मैं? इनिशियल वेलोसिटी 0 बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, एंड फाइनल वेलोसिटी इज हाउ मच बच्चों? 6 मीटर पर सेकंड, राइट? एंड टाइम इज टेकन हाउ मच? 30 सेकंड. हाँ सर, क्या बात है, राइट? एंड इन द सेकंड केस में क्या हो रहा है? In the second case, what is happening? He applies the brake at this point. That's the reason. Its initial, at what velocity applies the brake? At 6 meter per second. तो यहां पर बच्चों बनता है initial 6 meter per second. ये आपको समझना होगा बच्चों, राइट? तो u is equals to 6 meter per second बना, और यहां पर जो आपका फाइनल वेलोसिटी है, कितनी आई उसकी वेलोसिटी? 4 मीटर पर सेकंड, और टाइम दिया है आपको बच्चों 5 सेकंड. अब फेमस फॉर्मूला है, क्या है फेमस फॉर्मूला? A is equals to v minus u by t. So then substitute the values. What is the v? 6, u 0, t is how much? 30. How much is the answer? 1 by 15 meter per second square. So this will be your answer. Acceleration is equals to what? 1 by 15 meter per second square. मतलब बच्चों इसका acceleration इतना हुआ. और जब हम अगर सेकंड केस में निकालेंगे तो फॉर्मूला वही है v माइनस यू बाय टी. तो बच्चों v कितना है यहाँ पर? 4 है. u कितना है? 6. और हाउ मच इज द टाइम? 5. 4 माइनस 6 माइनस 2 सर, माइनस 2 बाय 5. मतलब अगर मैं निकालूं इसको फ्रैक्शन में डेसिमल में तो 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर यह है आपका माइनस. मतलब क्या है बच्चों? When he pedals the bicycle, the acceleration is increases. That cycle is accelerated. But as soon as he applies the brake, then the acceleration is what? Decreases. और इसे कहेंगे हम retardation. Right? तो ऐसे कुछ examples किए जाते हैं बच्चों, आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है? Hope it is very much clear. Now the next example, ये आपको याद रखना होगा, जो ऊपर वाला मैंने जो लिखा है ना,
हाँ, क्या लिखा है मैंने ऊपर वाला, ये ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट बच्चों क्या होता है, v इक्वल्स टू 0, और जब स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट u इज इक्वल्स टू 0। याद रखोगे ना आप, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे हम, क्या है, लेट अस सपोज देयर इज अ ट्रेन whose velocity is decreases from 80 किलोमीटर पर आवर टू 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर, राइट बच्चों, इन हाउ मच टाइम, दैट इज 5 सेकंड, लेट अस सपोज इन 5 सेकंड। क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है बच्चों। मैं इसका जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जो वहां से जाकर उसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ, अब लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, हाँ लिखेंगे क्या, चलो लिखते हैं ना सर, क्या लिखते हैं, इनिशियल क्या है यहाँ पर बच्चों, कहां से कम हुई 80, तो ये इनिशियल बना, राइट। सो इनिशियल हुई आपको 80 किलोमीटर पर आवर, फाइनल हुई आपकी यहाँ 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम इट टुक बच्चों, 5 सेकंड, राइट। अब द प्रॉब्लम इज हियर, टाइम इज इन सेकंड एंड वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी इज इन आवर, सो कन्वर्ट इनटू व्हाट, मीटर पर सेकंड। तो कन्वर्ट करते इसको, कन्वर्ट करेंगे ना तो कितना आता है, हाँ 80 किलोमीटर पर आवर मतलब कितना हुआ भाई साहब, 80 इंटू 5/18, राइट। तो ये बना 9, ये बना 40, 45 सा, हाँ 200/9 मीटर पर सेकंड हुआ, राइट बच्चों। सिमिलरली 60 हमने पढ़ा था, हाउ टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू व्हाट, मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय 5/18, यही तो फंडा यूज कर रहा हूं मैं। सो 5/18 यहाँ पर कितना होगा बच्चों, 30 होगा, और यहाँ पर 9 होगा, मतलब कितना है ये 150/9 मीटर पर सेकंड। हाँ या ना बोलो, हाँ सर। चलो अब फॉर्मूला यूज करो भाई साहब, क्या फॉर्मूला एक्सेलरेशन निकालने का, सर हमको पता है मत बताओ, हाँ 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 हाँ। चलो v कितना है, आया कितना 150/9 और 200/9 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है बच्चों आपका, टाइम 5 सेकंड है। तो ये आपका डिनोमिनेटर कॉमन है, तो 150 माइनस 200 -50/9 बना, सो ये हुआ -50/9 डिवाइडेड बाय 5। बच्चों में क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दैट -50 डिवाइडेड बाय 45, 9 इंटू 5 45, राइट, क्योंकि 9 तो डिनोमिनेटर में है ना रे, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इसलिए मैंने लिखा। सो -50 डिवाइडेड बाय 45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो बच्चों ये एक्सेलरेशन होगा आपका। ये बाकी का जो डेसिमल है वो कैलकुलेशन हम करते बैठेंगे, लेकिन जो मेन एग्जांपल है कि क्या हो रहा है, आर यू अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन और नॉट, दैट हैज टू बी अंडरस्टैंड, राइट। देयर वी आर सपोज टू गिव द फोकस, राइट बच्चों। सो दिस इज व्हाट द एग्जांपल 2 रिलेटेड टू द एक्सेलरेशन। बच्चों वैसे करने के लिए तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स है, लेकिन हमें ये कहीं ना कहीं तो समझना होगा, राइट। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं इसके हिसाब से। So let us suppose there is one train, right, and he started from the platform, right, and attains a velocity of 40 meter per second. Correct? Train starts from the platform and attain 40 meter per second. In how many minutes? 10 minutes. तो बच्चों निकालने के लिए बोला है हमें, हाँ गेस एक्सेलरेशन। क्या बात है सर, आप तो बहुत बढ़िया है सर, है ना अरे क्या बात। चलो 40 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर व्हेन ट्रेन डिपार्ट्स फ्रॉम द स्टेशन व्हाट मस्ट बी इट्स इनिशियल वेलोसिटी, 0 है सर। सो सिंपल सी बात है ना, यहाँ पर लिखे हैं मैंने, हमने लिखा है वहाँ पर, तो लिखो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, गिवन डेटा। तो गिवन डेटा लिखते हैं हम यहाँ पर, इनिशियल वेलोसिटी है अपनी कितनी 0, फाइनल वेलोसिटी दी हमें 40 मीटर पर सेकंड, राइट 40 मीटर पर सेकंड, नहीं 40 नहीं है, 40 किलोमीटर पर आवर है बच्चों, वेरी सॉरी 40 किलोमीटर पर आवर। अब ये मिनट में है टाइम, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना बच्चों, तो ये कितना होता है 10 मिनट्स दिया हुआ है ना, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये कितना आता है 10 इंटू 60 600 सेकंड बना, और ये कितना बना 40 इंटू 5/18, राइट। कितना बना ये 9 बना, ये 2 बना 20 बना, तो ये 100/9 आया। चलो कर लेते हैं। आप फॉर्मूला क्या है, ये इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। हाँ वी कितना बच्चों 40 नहीं है, अब 40 कहाँ से आएगा 100/9, राइट, -0 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है आपका 600। फिर से इसको कर लेते हैं, दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 600। तो ये जीरो क्या होते हैं बच्चों कैंसल,
तो बनाओ कितना 1/54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन कितना हुआ आपके ट्रेन का 1/54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे अगेन गाड़ी जुग 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 निकल रही है आगे, क्या एक्सेलरेशन है 1/54। ट्रेन में बैठे होंगे आप, उसका मज़ा भी लिए होगा अपने, सफ़र ये सफ़र है सुहाना, है ना। तो ये बनता है बच्चों, दिस व्हाट सम ऑफ द एग्जांपल्स रिलेटेड टू द एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर कोई भी कुछ भी कोई भी स्टेटमेंट आप लगाकर कितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ द प्रॉब्लम्स आप इसके ऊपर बना सकते हो, लेकिन कब, जब आपको ये समझ में आएगा कि फॉर्मूला अप्लाई करना कैसे करना है एंड व्हाट आर द वैल्यूज आर गिवन देयर, देन ओनली यू कैन एबल टू सॉल्व द questions related to the accelerations, right बच्चों? Now these are the some of the numericals, but now today we are very much interested to understand one very important concept, and that is what the graphical representation of a motion. क्या है नाम बच्चों? Graphical representation of motion. We will study this phenomena here, that is what the graphical representation of motion. बच्चों ये graphical representation जो है ना, it's a very important, because that is one of the most convenient way to define the motion, to represent the motion of any object by the graphical representation, है ना। आपने बहुत बार इसमें भी देखा होगा, किसमें, बहुत बार क्रिकेट मैच में भी देखा होगा। क्या देखा होगा सर? हमने तो बहुत कुछ देखा है सर। आप किसकी बात कर रहे हो? आप किसकी बात कर रहे हैं भाई? मैं ग्राफ की बात कर रहा हूँ, है ना। जो रन रेट होता है, वो रन रेट किस में दिखाया जाता है? बार ग्राफ्स होते हैं, एग्जैक्टली। अब यहां पर हम लाइन ग्राफ्स की बात करेंगे बच्चों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, राइट बच्चों। जैसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो दो प्रकार के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम 9th में पढ़ने वाले हैं। जो पहला है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसे कि आप कह सकते हो एसटी ग्राफ। विच ग्राफ? यस माने डिस्टेंस, एसटी ग्राफ, राइट। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ? व्हाट वी विल गेट फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ? बच्चों ऑलवेज रिमेंबर, फ्रॉम एसटी ग्राफ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम एसटी ग्राफ वी गेट स्पीड, वी गेट स्पीड। अब बच्चों स्पीड क्या होती है आपको भी पता है, हमें स्पीड मिलती है, लेकिन कैसे मिलती है मैं बाद में बताऊंगा आपको, बट प्लीज नोट इट डाउन दिस। तो हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या मिलेगा बच्चों? स्पीड मिलेगा, है ना। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर, दिस व्हाट द कंसेप्ट। अब यहां पर हम बात करेंगे कि यार डिस्टेंस टाइम ग्राफ में होता क्या है, राइट। तो बच्चों वी नो वेरी वेल देयर आर ऑलवेज टू एक्सिस आर देयर लाइक दैट, है ना। दिस इज द y एक्सिस एंड दिस वन इज द x एक्सिस। बच्चों दिस डिस्टेंस इज टेकन अलोंग द y एक्सिस, इजंट इट? दैट इज इन मीटर, एंड दिस टाइम इज टेकन अलोंग विच एक्सिस? X axis. This is the concept, correct? Imagine that, let us suppose there is one graph like that, there is a graph is like that. Now from that, how we will calculate the, let us suppose these are the sum of the points, how we will calculate the speed? We are saying na, that from the distance time graph we will get the speed, but how exactly? From the slope of the graph we will get the velocity, from the slope of the graph। अब slope कैसे निकालते हैं आपको भी पता है, slope is equals to what? एग्जैक्टली y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, राइट आया ना? यस। अब मानकर चलो बच्चों कि मैं ये दो पॉइंट्स चूज कर रहा हूँ, कोई भी दो पॉइंट्स आप चूज कर लो, ये एक पॉइंट्स और ये एक पॉइंट, राइट। ऐसे डिंग 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 डिंग। ये बच्चों चलो मानकर d1 है और ये क्या है आपका d2 है। अब ये टाइम एक्सिस है इसलिए मैं t2 ले रहा हूँ, और ये डिस्टेंस एक्सिस है इसलिए मैं d1। आप s भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको st बोल सकते हो, dt बोल सकते हो, कोई भी, इट्स अबाउट द सिंबल्स, राइट। तो चलो यहाँ पर हम स्लोप, अब क्या होगा बच्चों? स्लोप से क्या मिल रहा है हमें? स्पीड मिल रहा है, यस सर। अब हमें पता चला कि स्पीड कैसे निकालना है ना बच्चों। तो क्या होता है? d2 माइनस d1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। तो बच्चों ऐसे क्या निकाला जाता है? स्पीड निकाला जाता है, किससे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। किसे निकाला जाता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। बट वी हैव सीन ऑलरेडी देयर आर टू टाइप ऑफ मोशंस आर देयर, वन इज द यूनिफॉर्म मोशन एंड द सेकंड वन इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हम इसके ऊपर के एग्जांपल्स करेंगे बाद में, लेकिन अभी ग्राफ्स कैसे होते हैं यूनिफॉर्म मोशंस के और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के, मैं आपको वो बताऊंगा बच्चों, राइट। अगर मैं यहाँ पर ले लूँ, चलो मानकर चलो कि हम यूनिफॉर्म मोशंस की बात करेंगे, राइट बच्चों। यूनिफॉर्म मोशंस मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट चेंजेस इक्वल डिस्टेंस इन, ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। सो देन
here if you are representing, let us suppose this is what the graph, here is the yes बच्चों, that is the distance, that is taken as, सर आप d2 कहीं ले रहे हो, आप st कहीं पर ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क पड़ना है, चलो मैं d लेता हूँ। डिस्टेंस इज इन मीटर एंड टाइम इज इन व्हाट बच्चों, हाँ सेकंड। अगर बच्चों ये ग्राफ ऐसे है आपका, this graph is what the uniform motion, and whenever such type of graph is there, then this type of graph is uniform motion and the velocity or the speed is what, हाँ स्पीड इज कांस्टेंट। तो यहां पर क्या होती है बच्चों, स्पीड जो है आपकी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्यों कांस्टेंट होती है, क्योंकि ये इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, 2 मीटर पर 2 सेकंड, नेक्स्ट 2 मीटर पर 2 सेकंड, नेक्स्ट 2 मीटर पर 2 सेकंड। इसलिए हमें ये ग्राफ जो है वो कैसे मिलता है, स्ट्रेट लाइन और लीनियर ग्राफ मिलता है हमें। कैसा ग्राफ मिल रहा है बच्चों, लीनियर ग्राफ मिल रहा है। समझो आपकी यूनिफॉर्म मोशंस में क्या होता है, राइट। अभी मैं यहां पर आपको दूसरा ग्राफ दिखाई देता हूं जो कि कहेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बहुत ही सिंपल सा ये भी। अब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशंस मतलब क्या है, हमें तो पता है ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज द रीजन। अगर मैं ये ग्राफ बनाऊं ऐसे, यहां पर बना डिस्टेंस इन व्हाट, हाँ मीटर, एंड टाइम इज इन व्हाट बच्चों, हाँ सेकंड, तो ग्राफ कैसे होता है ऐसे डिग 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 लाइक दैट। मींस व्हाट इज हैपनिंग हियर, the velocity of an object is what बच्चों, increases, correct। here increase in speed, क्या है, increase in speed, यही तो कंसेप्ट है बच्चों। यहां पर क्या हो रहा है, आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है ऐसे डिग 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 डिग, और यहां पर क्या है, ये ऐसे, तो यही तो हो रहा है, राइट। दिस एग्जैक्टली इज द कंसेप्ट इट इज टू बी कॉल्ड द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब मैं अगर मानकर चलो कि ये इंक्रीज इन स्पीड है, अगर आप कहोगे कि सर डिक्रीज इन स्पीड कैसे होती है, तो वो भी मैं बताऊंगा आपको कि डिक्रीज इन स्पीड कैसे दिखाई देती है, राइट। वो तो बहुत ही आसान है बच्चों। डिक्रीज इन स्पीड वो कैसे दिखाई देता है, ग्राफ लाइक दैट, ये डिक्रीज इन स्पीड का ग्राफ होगा लाइक दैट, राइट। और यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दिस इज द डी इन टर्म्स ऑफ मीटर एंड टी इन टर्म्स ऑफ व्हाट द सेकंड। तो क्या हो रहा है यहां पर, हाँ स्पीड डिक्रीजेस, राइट बच्चों, दिस इज व्हाट द केस। तो आपको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली वेलोसिटी इंक्रीज कब हो रही है, तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तभी आपका ग्राफ क्या होगा बच्चों, यूनिफॉर्म होगा, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो ये ग्राफ किसका है, नॉन यूनिफॉर्म। वो ग्राफ किसका था, नॉन यूनिफॉर्म। ये ग्राफ किसका था, यूनिफॉर्म। और ये जो मैंने पहले ग्राफ जो बताया था वो कौन सा था, वो भी यूनिफॉर्म का था, राइट। अब इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कुछ देयर आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट केसेस आर देयर। सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट केसेस, राइट नाउ आई एम टेलिंग यू हियर। लेट अस सपोज दिस इज द फर्स्ट वन ग्राफ। इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तब ग्राफ कैसा होगा बच्चों, तब का जो ग्राफ होगा ना डियर स्टूडेंट्स, सो दिस विल बी द ग्राफ। ये डी है बच्चों इन मीटर एंड टी है इन टर्म्स ऑफ व्हाट द सेकंड। बच्चों ये ग्राफ होगा आपका, ये ऐसा। दैट ग्राफ विल बी एग्जैक्टली पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। व्हाई, ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन बट द टाइम विल रिमेन सेम ना, समय सबसे बड़ा बलवान, राइट बच्चों। तो यही तो होता है, right? So whenever the object is at rest, so this will be the type of the graph. The second one, what is the second one now? Object moving with the constant speed. Object moving with constant speed. With constant speed. अभी जो मैंने कहा आपको, तो क्या होता है बच्चों ग्राफ, ये ग्राफ होगा ऐसे, right? राइट, ये होगा d इन टर्म्स ऑफ मीटर और t होगा इन टर्म्स ऑफ द सेकंड। बच्चों ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, है ना। सो दिस विल बी द व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट केसेस आर देयर। देयर इज वन मोर थर्ड केस दैट वेदर मे बी दिस क्वेश्चंस विल बी देयर, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। ऐसे होगा बच्चों, वो यहाँ पर d दे देंगे आपको, मीटर होगा, और t दे देंगे आपको, सेकंड होगा, और ग्राफ शायद ऐसे हो सकता है। Will this graph possible? No. Why? What is the reason behind that? This graph is not going to be possible in that case. It's very simple, children, that here position of object is goes on changes, but the time remains same. Is it possible? आपकी पोजीशन बदल रही है लेकिन आपका टाइम नहीं बदल रहा है, क्या वो ग्राफ पॉसिबल होगा ना? This is the case. So that's the reason actually this graph is not possible. This graph is
नॉट पॉसिबल एट ऑल. सो दिस इज व्हाट द केस विच वी आर डिस्कसिंग इन केस ऑफ व्हाट, किस में डिस्कस कर रहे हैं बच्चों हम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, राइट. अब मैं द थिंग राइट नाउ आई टोल्ड यू दैट वी विल सी वन एग्जांपल रिलेटेड टू दिस आल्सो, हाउ एग्जैक्टली फ्रॉम दिस वी कैन एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, है ना बच्चों. तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा. चलो मानकर चलो कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर. दिस इज व्हाट द वन ग्राफ, राइट. हियर इज द डिस्टेंस इन मीटर एंड हियर इज द टाइम इन सेकंड. ठीक है बच्चों, और आपका ग्राफ ऐसे है ना, ये ऐसे ग्राफ है. तो कुछ रीडिंग्स है, मानकर ये 0 है, 0, 2, 4, 6 और 8, राइट. और यहाँ पर मानकर चलो कि दिस आर द सम ऑफ द पॉइंट्स विच आई हैव टेकन हियर, है ना बच्चों. तो मानकर चलो कि थोड़ा सा ऐसे ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. चलो ये ले लेता हूँ मैं 1, 2 और ये लेता हूँ मैं 3. अब मुझे क्या करना है कि स्पीड निकालना है. तो देख लेते हैं कि हर पॉइंट के अंदर की जो स्पीड है आपकी कांस्टेंट मिल रही नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक दिस 2 पॉइंट्स लाइक दैट, दिस आर द 2 पॉइंट्स. तो ये मेरा D1 होगा, ये मेरा D2 होगा, ये मेरा T1 होगा, ये मेरा T2 होगा. क्या बनता है सर स्लोप का फॉर्मूला, हाँ दैट इज एग्जैक्टली D2 माइनस D1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1. तो D2 कितना है रे बाबा, D2 है आपका 4 और D1 है आपका 2 और यहाँ पर आपका है 2 माइनस 1. तो कितना आता है 2/1 विच इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये बच्चों सॉरी नॉट सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड, ये आपकी स्पीड बनी. लेकिन व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, अगर मानकर चलो मैं ये 2 पॉइंट्स ले लो तो ले लो, ये क्या बना 6 बना, ये बना आपका 3. तो क्या हो रहा है 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2, कितना आंसर आ रहा है बच्चों 2/1, मतलब कितना आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड. क्या मिल रहा है आपको, कोई भी पॉइंट्स ले लो बच्चों, आपको जो स्पीड है कांस्टेंट मिलेगी. क्या मिलेगी बच्चों आपको, स्पीड कांस्टेंट मिलेगी. दिस इज व्हाट डिस्टेंस टाइम ग्राफ. अब हम दूसरा ग्राफ यहां पर देखेंगे बच्चों. व्हाट इज द सेकंड ग्राफ, द सेकंड ग्राफ इज वेरी सिंपल और इस ग्राफ का नाम क्या है पता है आपको, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ बच्चों, ये ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. क्या इंपॉर्टेंट है मैं बताऊंगा आपको. अब इस ग्राफ से हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, फ्रॉम दिस ग्राफ वी गेट फ्रॉम VT ग्राफ, इसे VT ग्राफ कहा जाता है. फ्रॉम VT ग्राफ क्या मिलता है हमें, वी गेट एक्सेलरेशन. क्या मिलता है बच्चों हमें, एक्सेलरेशन मिलता है. और दूसरा क्या, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, राइट. किससे, फ्रॉम द एरिया ऑफ अ ग्राफ, फ्रॉम द एरिया ऑफ अ ग्राफ. बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको दोनों याद में रखना ही होगा. क्या करना होगा, आपको याद ही रखना होगा अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से. इसे कौन सा कहा जाता है रे बच्चों, VT ग्राफ कहा जाता है. कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है, यस. अब यहां पर लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस ग्राफिकल आल्सो. लेट अस सपोज दिस इज V. क्या होता है यूनिट, मीटर पर सेकंड, T इन टर्म्स ऑफ द सेकंड. हाँ या ना, हाँ सर. चलो एक ग्राफ में एग्जांपल मानकर ले लेते हैं. दिस इज व्हाट, दिस इज वन ग्राफ एंड ऑन दैट ग्राफ लेट अस सपोज बच्चों देयर आर 2 पॉइंट्स आई हैव टेकन, राइट. नाउ ड्रॉ लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस लाइक दैट. समझ में आ रहा है. अब मैं इसको क्या करता हूं, थोड़ा सा शेड करता हूं बच्चों ऐसे ही, राइट. तो यहां पर क्या मिल रहा है बच्चों, दिस शेडेड रीजन गिव्स द व्हाट, एरिया ऑफ ग्राफ. क्या दे देता है आपको, कम ऑन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड. क्या दे देता है बच्चों, डिस्टेंस ट्रैवल. ये याद में रखना होगा बच्चों आपको, अगर आपको अच्छी तरह से इसके सवाल बनाने हैं. बहुत बार ये कॉन्सेप्ट, ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके, तो इस जो शेडेड एरिया, अब ये शेडेड एरिया कौन सा, अगर मैं यहां पर बनाऊं तो यहां पर मैं लिखता हूं क्या, डिस्टेंस ट्रैवल्ड. डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या है बच्चों, ये शेडेड एरिया. एरिया ऑफ ग्राफ मतलब क्या दिखा रहा है, रेक्टेंगल दिखा रहा है. दैट इज व्हाट द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. किसका होगा ये, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. और क्या चाहिए बताओ आप मुझे, व्हाट यू वांट मोर देन दिस. यार आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्टेंस भी दे रहा है, एक्सेलरेशन भी दे रहा है. और एक्सेलरेशन कहां से निकालोगे आप, स्लोप से निकालना पड़ेगा. करेक्ट. हम देखेंगे इसमें जब हम यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि इसके ऊपर से एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है. बाय टेकिंग द एग्जांपल आई विल टेल यू हाउ एग्जैक्टली दिस डिस्टेंस हैज टू बी कैलकुलेट. लेकिन आपको पहले यह समझना होगा कि इस ग्राफ से हमें क्या मिलने वाला है.
दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट बच्चों। तो अब इसके ऊपर के कुछ यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के जो कॉन्सेप्ट्स है वो हम देखेंगे कि एक्चुअली होता क्या है ना। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो उसमें क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो उसमें क्या होता है, राइट, है ना बच्चों। अगर यहाँ पर अगर मानकर चलो कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है ना, तो एक पहली केस ले लेता हूँ मैं, सपोज दिस इज व्हाट, राइट, ये ग्राफ है, यहाँ पर वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में और यहाँ पर टाइम है आपका सेकंड में। बच्चों अगर ये ग्राफ है, दिस ग्राफ, तो यहाँ पर क्या है आपकी वेलोसिटी क्या है ना, व्हाट इज हैपनिंग हियर, योर एक्सेलरेशन इज व्हाट, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या है बच्चों आपका, एक्सेलरेशन क्या है आपका, कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वीटी ग्राफ से क्या मिलता है हमें, स्लोप क्या मिलता है, स्लोप अगर निकालेंगे तो हमें क्या मिलता है बच्चों, एक्सेलरेशन मिलता है। दिस इज वन टाइप ऑफ द ग्राफ एंड दिस इज व्हाट द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन है बच्चों, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। कौन सा एक्सेलरेशन का ग्राफ है, यूनिफॉर्म। व्हाई, ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आप समझो मैं क्या कह रहा हूं, राइट। तो ये बहुत जरूरी है, दिस इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ। अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो वो कैसे होगा, सर ये तो ना बहुत ही जबरदस्त ग्राफ होता है, कैसे, डिग 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 लाइक, बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है। तो ये किसका ग्राफ है बच्चों, हाँ, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है ये, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। सो दिस इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड द सेकंड वन इज व्हाट, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है जो कि आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना होगा। दैट इज द फर्स्ट वन, करेक्ट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, करेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट moves with which velocity children, constant velocity, तो ग्राफ कैसे होता है उसका, ये ग्राफ होगा उसका ऐसे, करेक्ट। यहां पर क्या है आपका, वेलोसिटी है दैट इज मीटर पर सेकंड और टी क्या है, सेकंड में। जब ये होता है ना बच्चों, सो दिस इज द ग्राफ, ये ग्राफ होता है, दैट ग्राफ विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इसका मतलब है कि आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, जबकि अगर आप जो आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। हमने देखा था रेस्ट केस में, पिछले डायग्राम में देखा था हमने, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट दैट ग्राफ वाज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। हाँ या ना, हाँ सर, बहुत ही अच्छा है सर, ये समझ में आ रहा है। तो ये होता है बच्चों, इफ ऑब्जेक्ट, सेकंड ग्राफ होता है, करेक्ट, ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर वो रेस्ट से निकल पड़ता है तो बच्चों ग्राफ कैसे होगा, दिस विल बी योर ग्राफ, है ना, ये आपका ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। सो ये दिस विल बी द वेलोसिटी मीटर पर सेकंड एंड द टाइम विल बी इन द सेकंड। बच्चों ये जो मैं बोल रहा हूं आपको, ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस है, ये आपको याद में रखना हो। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट मतलब क्या होता है, ये जीरो है बच्चों, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, राइट, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है आपका ऑब्जेक्ट, दिस इज द केस, है ना। और जो थर्ड ग्राफ है इसका, थर्ड ग्राफ क्या है, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू जीरो, है ना, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, मतलब क्या है बच्चों कि u इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो तब ग्राफ क्या होगा आपका, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द ग्राफ, आपका जो ग्राफ का नेचर होगा ना बच्चों, सो दिस विल बी द नेचर ऑफ द ग्राफ, है ना, ये, राइट, यहां पर आपका v होगा और यहां पर आपका t होगा। ये यहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, यहां से नहीं हो रहा है, यहां से हो रहा है। इसका मतलब क्या है, हियर इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट हियर इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। ऑब्जेक्ट आपका स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से हो रहा है, लेकिन यहां पे हो रहा है क्या ना, उसी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था, ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम ए वेलोसिटी लेट अस सपोज कुछ, तो इट रिड्यूसेस द वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर, जो भी होगा, है ना बच्चों। तो ये केस है। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है, अगर आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेट हो रहा है तो क्या ग्राफ होगा बच्चों, यूनिफॉर्मली अगर डी एक्सेलरेट हो रहा है तो क्या ये ग्राफ होगा, ऐसे लाइक दैट, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, यस, यूनिफॉर्मली, हाँ, डी एक्सेलरेटेड, ये ग्राफ से बच्चों आपको ये ग्राफ से याद में रखना पड़ेगा,
है ना। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देने वाला हूँ, वो कौन सा एग्जाम्पल होगा, उस ग्राफ से हम क्या करेंगे बच्चों की एरिया निकालने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ यार ये एग्जाम्पल कैसे किए जाते हैं, राइट। अब एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं यहाँ पर, लेट अस सपोज दिस इज व्हाट द ऑब्जेक्ट विच हैज लेट अस सपोज 0, यहाँ पर क्या है बच्चों 10, 20, 30, 40, राइट, सपोज मानकर चलो, एंड दिस इज व्हाट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग लाइक दैट। ओके बच्चों, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये 5, 10, 15 और यहाँ पर है बच्चों 20 और ये क्या है 25। अब सवाल क्या है, फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड, फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग 10 to 20 सेकंड। ये आपका सवाल है, मतलब हमें क्या करना है कि ऑब्जेक्ट ने 10 से 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस तय किया है, राइट। तब बच्चों क्या करना है आपको कि ये जो रीजन है, ये जो एरिया है इसका, ये एरिया आपको ऐसे माप कर लेना है, ये करेक्ट। और इसको आप शेड कर सकते हो, लेकिन व्हाट टाइप ऑफ दिस एरिया इज देयर लाइक दैट, दिस इज व्हाट द एरिया। समझ में आ रहा है आपको ये सो एरिया ऑफ दिस ग्राफ विल गेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, एरिया ऑफ दिस ग्राफ विल गेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। लेकिन बनाना कैसे है, हाउ वी कैन एबल टू डू दिस। तो इसके लिए बच्चों आप ये जो आपको जो भी एरिया यहां पर दिख रहा है, आई एम जस्ट गोइंग टू डू अनदर थिंग इज देयर लाइक दैट। अब पता चला व्हाट इज दिस मच ऑफ द एरिया इज व्हाट, हाँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और ये क्या है बच्चों, हाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट्स इट, है ना बच्चों। तो क्या होगा ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड, क्या है डिस्टेंस ट्रैवल्ड। क्या होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड, अब एरिया ऑफ ग्राफ। तो ग्राफ का एरिया कौन सा बच्चों, रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस हाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, यही तो आपका क्या है, हाँ डिस्टेंस ट्रैवल्ड है ना बच्चों। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। सो बच्चों ये आपके लेंथ है, लेंथ कितनी है रे सर 10 है, तो 10 राइट। और बच्चों आपका इसका ब्रेड्थ कितना है, ऑब्वियसली 20 है, क्योंकि हाइट देखिए आप थोड़ा सा ये ग्राफिकली ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स बच्चों आपका 10 ही है, और ये जो पॉइंट्स है आपका कितना है बच्चों, ये 20 है ना, और ये जो पॉइंट्स है आपका ये 30 है। थोड़ा सा ग्राफिकली ये हुआ है, होप यू आर अंडरस्टैंड। ओके, ये जो पॉइंट्स है आपका, ये पॉइंट्स कौन सा है बच्चों, ये आपका 40 है, ठीक है। तो ये कितना है बच्चों, ब्रेड्थ 20 है प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज दिस, कितना है बच्चों ये हाफ, बेस कितना है उसका, बेस भी 20 ही है, हाइट कितना है, हाइट भी कितना है बच्चों, हाँ 20 से लेकर 40, दैट इज व्हाट द 20 है। सो 2 डेंसा तो कितना बना ये 200 प्लस 100 तो कितना बना 300 मीटर। दिस इज व्हाट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल। बच्चों आप सबको पता है कि अगर ग्राफ में डिस्टेंस ट्रैवल्ड इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कब होता है, जब तक कि आपका ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में ट्रैवल कर रहा है, तब तक डिस्टेंस इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा इन केस ऑफ ग्राफ। वंस द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स डायरेक्शन देन द डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंट एंड distance will be different. I request you please remember even in case of the graphical representation of the motion. Hope you all are getting what exactly is the concept, है ना बच्चों। तो ये एक प्रकार का एग्जाम्पल हुआ। अब दूसरा एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल कर लेते हैं बच्चों, इसी के ऊपर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं ना। क्या एग्जाम्पल कर लेते हैं, चलो यहाँ पर एक मान के चलो, दिस इज व्हाट द ग्राफ इज गिवन, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद दिस एंड इट अगेन कम्स टू लाइक दैट। ओके बच्चों, तो ये है, दिस इज व्हाट द टाइम इज गिवन 2 सेकंड, दिस इज 1 एंड हियर इज व्हाट बच्चों 3 सेकंड। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कर रहा हूँ। और यहाँ की जो वेलोसिटी दी है बच्चों, ये दी है 2 मीटर पर सेकंड एट दिस पॉइंट। मीन्स व्हाट, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, it reaches to the maximum velocity up to the 2 meter per second and again it what, the velocity is what, decreases। तो हमें क्या करना है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड, क्या करना है बच्चों, डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड कौन कौन से टाइम फ्रेम में हमें निकालना है, पहले हमें निकालना है 0 to 2 सेकंड में, और दूसरा निकालना है बच्चों 2 to 3 सेकंड में। मानकर चलिए कि ऐसा कुछ सवाल है। अब कैसे करेंगे इसको, सिंपल सा है, पहले आपको इस ग्राफ का एरिया निकालो, राइट, और बाद में आपको क्या करना है, हाँ
इस ग्राफ का आप क्या निकालो बच्चों, एरिया निकालो। तो पहला हम निकालते सपोज ये फर्स्ट एंड दिस वन इज व्हाट द सेकंड। अगर आप चाहें तो ये भी यहाँ से बन सकता है। तो पहला हम निकालेंगे 0 to 2 सेकंड। क्या है बच्चों, डिस्टेंस ट्रैवल में यस ले लेता हूँ। क्या है ये बच्चों, ट्रायंगल ही है। हाफ बेस कितना है इसका 2 है, 0 to 2 इंटू, हाँ 0 to 2 है। हाइट कितनी है बच्चों इसकी 2 है, ये देखो ये हाइट कितनी है, ये हाइट 2 है ना। सो ये 2 कैंसल, तो यस कितना बना 2 मीटर एग्जैक्टली। हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रैवल फॉर 0 to 2 मीटर, राइट बच्चों। और सेकंड केस के लिए क्या बनता है, तो यस फिर से ट्रायंगल है, यस इज इक्वल टू हाफ, कितना है बेस इसका 2 to 3 1 है बेस, समझ में आया। हाइट कितना है 2 है, 2 कैंसल, तो यस कितना है बच्चों, हाँ 1 मीटर है। यस कितना है 1 मीटर। सो दिस इज द थिंग विच आई जस्ट वांटेड टू टेल, करेक्ट। और टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना है बच्चों 2 + 1 3। अगर आप डायरेक्टली भी इससे भी निकालते, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल 0 to 3, 0 to 3 का 3 होगा, समझ में आ रहा है ना। कैसे देखो ना यार, हाफ इंटू 3 into 2 to get cancelled, 3 is remaining. So this what some of the graphs which are related to this. Obviously in the next video I will try my best to bring more and more numericals related to the graphical representations. Till now that's it. Thank you so much. Keep on watching these videos and try to score the more and more in your exams. Thank you.